first law of thermodynamics. dq is equal to du plus dw. Means theoretically dq is amount of heat added, and the thermodynamics first law states that heat added to the system is equal to the sum of change in the internal energy and work done. Okay, the change in energy is because of change of temperature. You have this relation Cv, molar specific heat at constant volume. This is equal to du by dt. Du by dt means change in the internal energy with the temperature, that is Cv. Okay, so you can replace dV by Cv into dt. This will help you in answering question like whether there is a change in the internal energy or not. What is the cause of change in internal energy? That is change in temperature. And what will be the cause of the work done? Work may be done by the system or on the system, but the cause of work done is change in the volume. If you have a system isochoric process in which there is no change in volume, so when there is no change in volume, then this item will be zero. The work done by the system or on the system will be zero. Okay, yesterday I told you if you have a PV diagram, okay, and the process is cyclic. This is the graph of PV diagram. It may be clockwise or anti-clockwise. And you know what do you mean by when this graph is traversed clockwise or anti-clockwise? This will give you the sign of work done. From your 9th class knowledge, you know, work done can be negative, work done can be zero, work done can be positive. And we attach sign convention. If work is done by the system, it is positive. If work is done on the system, it is a negative. So you have to decide the sign of the work done also. Okay? Then, if this is the case, PV diagram is cyclic process, reversible process, and then you supply some heat, the system does some work. This is the work done by the system, and this is the work done on the system. This is the heat added to the system, and this is the amount of heat removed from the system. जिन्होंने कल मिस किया होगा उनको थोड़ी हेल्प मिल जाएगी अभी आज के क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए. Process is cyclic. PV diagram is like this. Okay, and whatever is given, Q1 is the amount of heat supplied to the working substance. Working substance is generally working gas. Okay, generally we talk about ideal gas. Working substance as an ideal gas. So you have supplied some heat, then system does some work. Work may be done by the system or on the system. This work is done by the system is positive. This is work done on the system is negative. And if you say what is the net work done, the net work done, you will say W1 minus W2. Net work done is W1 positive, W2 negative. Then what is the net amount of heat which is used in performing work? That is, system accepted this much heat and removed this much heat. Rejected this much. इतनी लेके इतनी हीट दे भी दी, तो जो डिफरेंस आया वो वर्क में कन्वर्ट हुई, और वो नेट हीट है जो यूज हुई है वर्क करने में. ओके, सो making use of first law of thermodynamics, making use of the concept of internal energy, and making use of the concept of work done, you have to answer certain questions. Let us take an example. You have a thermos flask, and thermos flask contains coffee, let us suppose, and you shake that thermos flask vigorously. उसको हिलाओ जितनी तेज हिला सकते हो. Thermos flask containing coffee, hot coffee, okay, at any temperature, and this is
shaken vigorously. घुमाया गया खूब तेज। आप क्यों घुमा रहे हैं उसको? हो सकता है कि इसमें आपने चीनी बाद में डाली हो, डिजॉल्व नहीं हो रही, सॉल्युबिलिटी बढ़ानी है, तो शेक कर रहे हैं। व्हाट आर यू डूइंग? यू आर डूइंग वर्क, you are doing work, you are shaking the flask, Work done on the thermos. okay, you are doing work. Now my question is that you have a thermos flask containing coffee and it is shaken vigorously, and you suppose coffee as our thermodynamical system, which generally is ideal gas, but here our system is hot coffee and you are shaking it vigorously. The question is, what will happen to number one? Pressure of the system, volume of the system, temperature of the system. Okay? And the size of molecule of coffee. Out of these four factors, which factor will be affected? Temperature. Okay. Now what will happen to the temperature? The answer is correct. The temperature will change. But now question is, change in temperature means temperature may decrease or it increases. So the coffee of temperature will decrease. डिक्रीज होगा Why? सर जो कॉफी है हीट सर रिलीज होगी उसकी बार बार हिला हिला कर जितनी हीट थी थोड़ी Thermos is insulated from surrounding. तो डबल वॉल्ड वेसल होता है, आपको पहले पता होगा थर्मस का क्या है। तो उसमें जो चीज़ रखी जाती है ये सोच के रखी जाती है गर्म है तो वो गर्म ही रहेगी। सर पर थ्योरेटिकली तो वो हमेशा के लिए गर्म रहेगी, लेकिन प्रैक्टिकली क्योंकि लीकेज ऑफ हीट एनर्जी होती है, परफेक्ट इंसुलेशन नहीं होता, सिस्टम सराउंडिंग से हीट एक्सचेंज कर सकता है अगर परफेक्ट इंसुलेशन ना हो। ठीक है ना? तो पहले क्वेश्चन का आपने आंसर दिया है कि जब हम वी शेक द flask vigorously, there will be change in temperature. Okay, this is not exactly the correct answer. You should say whether temperature will increase or it will decrease. There are two options. Change means two options. Temperature may rise, temperature may fall. So what will happen? It will rise or fall. सर according to weight. Make use of this. You are doing work on the system. Sir, Okay. energy of the body, energy of the system will increase. What is the sign of this? You are shaking the flask. Minus. You are doing work on the system. Then according to sign, Minus. it is नेगेटिव to transfer it to this side. So something will be added to left hand side. Yes, sir. Okay. And my question is related to temperature. So temperature is contained in this. Yes, sir. Yes, sir. Okay. When you are doing work on the system, this work is a negative. Transfer to this side. Something will be added to left hand side. Okay. जो हीट आपने जो उसकी हीट आपने दी थी उसको गर्म करने के लिए, उसमें कुछ हीट और ऐड होगी ना, जो आप फिर आपको ये भी पता है कि वर्क एंड हीट दे आर इंटर कन्वर्टिबल। Yes, sir. तो जो वर्क आपने किया वो हीट में कन्वर्ट हो गया। ये माइनस था, इधर आके प्लस हो गया। और ये हम इसके बारे में पूछ रहे हैं, इसको क्या हुआ? टेम्परेचर चेंज हुआ, डीटी में चेंज इन टेम्परेचर। अब ये प्लस हुआ कि माइनस हुआ, बढ़ा के घटा, इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ, राइज हुआ कि फॉल हुआ, ये आपको से पूछा गया। ठीक है ना? तो आप बताओ फिर व्हाट विल हैपन टू दिस टेम्परेचर? Sir, it will decrease. चलिए उधर माइनस होएगा ऊपर। ये माइनस तो इधर आ गया ना, वर्क इसमें पहले जो हीट दे रखी थी उसमें ये वर्क किया, ये प्लस हो गया, और ये वर्क हीट में कन्वर्ट हो गया। हीट और पहले से ज़्यादा हो गई, उसको मिल गई, तो हीट ज़्यादा मिल गई तो फिर टेम्परेचर बढ़ेगा कि घटेगा? सर बढ़ेगा। फिर सर पर फिर ऐसे तो हम हिला हिला के उसको और गर्म करते रहे, वो कभी ठंडी नहीं होगी। जो वर्क किया है वो बेकार नहीं जाता। जो वर्क आप ऑन द सिस्टम कर रहे हो, ये इसको यूज करो। वर्क एंड हीट एनर्जी दे आर इंटर कन्वर्टिबल। सर ठीक तो आपका है। जो वर्क डन इन शेकिंग द थर्मस फ्लास्क वो बेकार थोड़ी गया। फिर आपने साइन कन्वेंशन यूज की कि यू आर डूइंग वर्क ऑन द सिस्टम, दैट वर्क इज नेगेटिव, इसको इधर ले गए।
वर्क एनर्जी उनके सेम यूनिट्स भी हो सकते हैं, दोनों जूल में ले सकते हैं, या वर्क जूल में लिया, हीट कैलोरी में लिया तो वर्क को भी जूल में कन्वर्ट किया जा सकता है जे से डिवाइड करके। ओके, तो अगर सेम यूनिट लिए हैं तो फिर इधर ट्रांसफर हो गया, ऐड हो गया, ये जूल में है, ये भी जूल में है, ये माइनस था, इधर आके प्लस हो गया, ये आइटम बढ़ गई, इसमें समथिंग ऐड हो गया ना। जो हीट आपने दी थी कॉफ़ी को, उसमें कुछ हीट और आ गई, जैसे सिस्टम को थोड़ी सी हीट और मिल गई। तो हीट क्या करती है? व्हाट आर द टू मेन फंक्शंस ऑफ हीट? टू चेंज द टेम्परेचर और टू चेंज द स्टेट ऑफ द सब्सटेंस। अब कॉफ़ी तो विल रिमेन कॉफ़ी, उसको हम सॉलिडिफाई तो नहीं कर रहे ना, उसको वेपराइज कर रहे हैं, स्टेट तो वही है। फिर दूसरा काम क्या है हीट एनर्जी का? टू चेंज द टेम्परेचर। सर अगर एक मिक्सी में पानी रख के तो चला देते हैं तो वो पानी गर्म हो जाएगा? बिल्कुल। अगर आप उसको इंसुलेट करते हैं और जो वर्क आप कर रहे हैं वो हीट में कन्वर्ट हो रहा है, इंटर कन्वर्टिबल है, इनमें रिलेशन है, W/H हमेशा कांस्टेंट रहेगा, W/H इज J। तो आप वर्क कर रहे हैं तो फिर हीट भी तो उसी कार्टिंग रेशियो कांस्टेंट रहनी है। मोर एंड मोर वर्क, मोर एंड मोर हीट, मोर एंड मोर राइज इन टेम्परेचर। ये जो डेली लाइफ में जो फिजिक्स यूज होती है, जो भी लेसन आप पढ़ रहे हैं उसको कोरिलेट करो विद डेली लाइफ। ओके, आप कहीं भी जाओ, आप क्रिकेट के मैदान में हैं तो आपके पास फिजिक्स का कंसेप्ट है, प्रोजेक्टाइल, पब्लिक प्रोजेक्टाइल। बैट्समैन ने बॉल को हिट किया फॉर 6, लिफ्ट किया, उसका पाथ देखो, क्या वो पैराबोलिक है? मैक्सिमम हाइट देखो, उसकी रेंज देखो, वेलोसिटी देखो। ओके, अभी जिस ज्वेलियन थ्रो प्लेयर को गोल्ड मेडल मिला, उसने जो ज्वेलियन थ्रो फेंका 88 पॉइंट समथिंग मीटर दूर गया, और उसके करस्पॉन्डिंग जिनको फिजिक्स, जो बच्चे फिजिक्स से कंसर्न है, उन्होंने वेलोसिटी निकाली कि किस वेलोसिटी से फेंका होगा, रेंज इतनी है, हॉरिजॉन्टल रेंज। ओके, अगर आप उसको मैक्सिमम भी मान लें तो थीटा की तरह होना चाहिए 45, तो कॉरस्पॉन्डिंग दैट एंगल आप वेलोसिटी निकाल दो, डाटा तो आपके पास है। 38 डिग्री पे फेंका था। हाँ जी, 38 डिग्री 38 डिग्री एंगल। हम बात कर रहे हैं स्पीड की, किस स्पीड से फेंका होगा अगर एंगल 45 भी हो। अब यहाँ दो चीज़ें नहीं आप निकाल सकते, स्पीड और एंगल। डाटा सिर्फ आपके पास क्या है? सिर्फ रेंज, और रेंज में अननोन कितने हैं? डाटा में एक आइटम दी है और दो चीज़ें आप पूछ रहे हैं, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन और स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन, दोनों चीज़ें नहीं निकलेंगी, दोनों में से एक नॉन होगा। तो आप सपोज भी कर लो भी ये रेंज मैक्सिमम थी, क्योंकि उसने तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना था, तो उसने तो फिर मैक्सिमम रेंज लाने की कोशिश करनी थी, उसने तो पूरा पावर लगाया, मैक्सिमम कितनी दूर फेंक सकता था उसके लिए रेंज है वो। आप 45 डिग्री पे रेंज मैक्सिमम होती है मान के चलो, तो कॉरस्पॉन्डिंग स्पीड निकालो। गॉट माय पॉइंट? सो यहाँ थर्मोडायनेमिक्स है, तो आप वर्क कर रहे हैं, डेली वर्क करते हैं, आप हाथ पे हाथ रब करते हैं, तो हाथ गर्म नहीं होते? बोलो सर क्यों टेम्परेचर बढ़ गया? बिना हीट सप्लाई की कैसे टेम्परेचर बढ़ गया? वर्क डन, you are doing work against friction by rubbing one hand over the other, so that work gets converted into heat. That helps in changing the temperature, in increasing the temperature. Okay, तो लॉजिक दो कि इसका क्या कारण हो सकता है। I told you whenever you are put some question and you have to answer, remember to whom you are answering the question, he will catch you by your collar, how you say this thing. Then you have to take the help of either the law. You will say, I am not saying, I have not performed this experiment, I am saying on the basis of this law. जब हम कहते हैं कि that is shaken, तो टेम्परेचर चेंज होगा, कैसे कह दिया आपने टेम्परेचर चेंज होगा? भाई वी हैव जूल्स लॉ कि वर्क एंड हीट आर इंटरकन्वर्टिबल, वी आर डूइंग वर्क ऑन द सिस्टम and that work will get converted into heat.
एंड बिकॉज ऑफ दैट यू आर सेइंग कि कॉफी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा. या मेक यूज ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. This is the law which helps you in establishing a relation with heat energy with other energies. Thermodynamics definition क्या बताई थी? Branch of physics which deals with transformation of heat energy into other energies. That energy, other energy here is mechanical energy. अब वर्क कर रहे हैं, मैकेनिकल वर्क कर रहे हैं, उसका हीट से क्या रिलेशन है? वर्क का हीट में से क्या रिलेशन है? इंटरकन्वर्टिबल है. एग्जैक्ट रिलेशन क्या है कि इनका रेशो W/H कांस्टेंट है हमेशा, और कांस्टेंट को जे कहते हैं, जूल्स मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, जिसकी वैल्यू आपके पास है 4.186 जूल पर कैलोरी. ओके, सो व्हेन यू आर शेकिंग थर्मस फ्लास्क विगरसली बहुत तेज जितना भी मैक्सिमम आप उसको हिला सकते हैं, आप वो हिलाने की कोशिश करें, सो दैट आप मैक्सिमम वर्क कर पाएँ, मैक्सिमम टेम्परेचर चेंज कर पाएँ, बढ़ा पाएँ. ठीक है ना? कितना वर्क आपने किया उसको शेक करने में, कितनी देर आपने उसको शेक किया, कितनी पावर लगाई है, कितना वर्क हुआ है, और उसकी कितनी हीट बनी है, और उसे हीट बनी है तो टेम्परेचर. अब हीट पैदा हुई है तो क्या करेगी हीट? दो काम ही तो दिए हैं उसको, चेंज ऑफ टेम्परेचर, चेंज ऑफ स्टेट. नो यू हैव टू डिसाइड व्हेन द फ्लास्क इज विगरसली शेकन, तो फिर क्या होगा? चेंज ऑफ स्टेट और चेंज ऑफ टेम्परेचर. अब वर्क कर रहे हैं, वो हीट में कन्वर्ट हो रही है और कॉफ़ी को हीट मिल रही है. ओके, तो टेम्परेचर चेंज होगा. अनलेस उसका बॉइलिंग टेम्परेचर आ जाए, फिर तो वेपर बनने शुरू हो जाएंगे. ओके, तो आपने थोड़े से टाइम के लिए आपने उसको शेक किया है, वर्क किया है. ये वर्क जो ऑन द सिस्टम है नेगेटिव है, और वो वर्क जो किया हीट में कन्वर्ट हो गया, वो नेगेटिव था, इधर आके ट्रांसफ़र हुआ. जो पहले हीट उसके पास थी, सिस्टम के पास, हॉट कॉफ़ी के पास, उसमें कुछ हीट और ऐड हो गई. अब कॉमन सेंस कहती है कि हीट और ऐड हो गई है सिस्टम को, तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा ही बढ़ेगा. चेंज ऑफ टेम्परेचर तो सही है, बट दैट इज़ नॉट 100% करेक्ट आंसर. चेंज का मतलब है इंक्रीज और चेंज का मतलब डिक्रीज. पर आपको ये भी तो बताना पड़ेगा नहीं इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा. ओके, so you have this relation with you have this relation with you have internal energy related to change in temperature also, and work done pressure into change in volume. Okay, now on the basis of the first law of thermodynamics आप ये आंसर देंगे. Here there are 4 PV diagrams. Okay, small dash 1, 2, 3, 4. I'm asking one question. In which case, out of these 4 PV diagrams, in which indicator diagram you feel the minimum work is done? Minimum work is done in which case? Make use of first law of thermodynamics. And make use of the concept PV diagram, work done is area under the graph. First. Now there are 4 diagrams. So you are see in which case minimum work is done? First. Yes. Because first figure PV diagram is a straight line, an area under a straight line, vertical line. It's a vertical line, not horizontal line. This is also straight line, and this is also straight line. This is horizontal, this is vertical. An area under the vertical straight line is 0. Mathematically, work done is P into dV. Okay, pressure decreases from 3 Newton per meter square to, let us suppose, ये वन यहाँ तक है ग्राफ. प्रेशर चेंज हुआ है, डिक्रीज हुआ है, लेकिन इज देयर एनी चेंज इन द वॉल्यूम? नो. So when there is no change in volume, then P into dV will be 0. Yes, sir. What is P into dV? dW. dW. 0 work will be done in this case. Yes, sir.
Okay, and find out work done in other 3 PV diagrams. How much work is done in this case? In PV diagram, work done is area under the graph. How much work is done in this case? 3 2 Make use of this relation. 3 m cube. Hmm? सर नीचे इसके 1 2 3 और 4 है तो 3 है. How much is the net work done, that is area enclosed by the cycle. It is cyclic process. एरो देखो क्या इंडिकेट कर रहा है, प्रोसेस यहाँ से स्टार्ट हुई है, प्रेशर P1 था, P3 हो गया, P1 से 3 हो गया, यूनिट ये है न्यूटन पर मीटर क्यूब. The pressure has increased from 1 Newton per meter square to 3 Newton per meter square while going from this to this. There is an increase in pressure, but for this part there is no change in volume. Volume is 2 meter cube, no change. Work done for this part of the graph is 0. Okay, but net work done is area enclosed. It is a triangle. So area of triangle is half into base into height. Half into base. Base कितना है? 2 to 4 ये change हुआ है वॉल्यूम. Okay, area will be half into base. Base is 2 to 4. कितना हुआ? 3 2 to 4. 2 3 4 How much? 1 2 2 है. आप यहाँ खड़े हैं, एक स्टेप लेते हैं, फिर एक स्टेप और लेते हैं. 2 कितने स्टेप हो गए? 2 तो खड़े खड़े एक स्टेप ले लेंगे. आप 2 to 4 चले हैं ना, 2 to 3 एक स्टेप हुआ, 3 to 4 दूसरा स्टेप हुआ. तो चेंज इन वॉल्यूम 2 मीटर क्यूब, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. हाउ मच इज द हाइट? हाउ मच इज द हाइट? सर 3 1 2 3. है सर. हाउ मच? 2 इसमें भी तो अब 2 स्टेप भी चलेंगे. फिर तो इंटू 2. यस सर. Okay, then comes out, okay, what should be the unit? जिन दो फिजिकल क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करें उनके यूनिट भी मल्टीप्लाई कर दो. न्यूटन मीटर. ये वॉल्यूम था मीटर क्यूब, सर वो था न्यूटन. प्रेशर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. लेफ्ट हैंड इज न्यूटन इनटू मीटर, न्यूटन मीटर. फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. न्यूटन फोर्स और मीटर डिस्प्लेसमेंट. इट इज वर्क. 2 न्यूटन मीटर. SI system work done will be taken in joule. तो कितना, how much work is done? 2 joules. Work done is in this case 2 joules. So look at this third diagram. अभी तो इसमें तो work done 0 है. In first diagram work done is 0. In second diagram it is 2 joule. In this diagram, how much is the work? Area under the graph. Graph is only this horizontal straight line. Stretching from 1 to 4. 3 3. Okay? So it is, the shape of the graph is? स्क्वायर. Huh? स्क्वायर. How do you say it is a square? नहीं सर रेक्टेंगल. रेक्टेंगल. हाइट 3 है और One side is 3, other side is all, how much? 2. सर वो वाली साइड 2 नहीं होगी. 1 से चलेंगे 2 फिर 3. 2 स्टेप हो जाएंगे. What is the area under this? Total area under this. Downward जाते कोई restriction नहीं. 1 to 4. 3 1 to 4 3 हो गया ये. Yes, sir. One side 3 मीटर क्यूब. Second side 4 नहीं है, भी 3 है. सर 2 न्यूटन मीटर स्क्वायर. ये साइड कितनी है? 3 4 4. सर 0 से जाएंगे ना. Yes. 4 4 1 2 3. 4 कैसे हो गया? सर 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3. तो कितने स्टेप हुए? 1 2 3 3. फिर तो लेंथ इंटू ब्रेथ, क्योंकि ये शेप रेक्टेंगल है. एरिया अंडर द ग्राफ
जो ये फिगर बन रही है, रेक्टेंगल बन रही है, स्क्वायर बन रही है, इसके दो साइड्स हैं, मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड को। दिस साइड इज 3 मीटर स्क्वायर ना 3 मीटर क्यूब, ये वॉल्यूम है। यस सर। इधर प्रेशर 3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। On simplification, work done is 9 joule. So far, here work done 0, here work done 2 joule, here work done 9 joule. How about this case? सर 3 मीटर क्यूब 2 और 3 न्यूटन अपॉन मीटर हो गया। मीटर 2 सर 3 आएगा सर उधर भी। सर 6 जूल आएगा। 1, 2, 3. सर 2 आएगा। 3 आएगा। 2 सर, सर 0 से चला सर। जीरो से कहाँ से नहीं, यहाँ ग्राफ का ये जीरो से भी स्टार्ट हो रहा है। अरे यार मैथ की ट्यूशन लगा हुआ है। ना भाई यूट्यूब से देखता हूँ। वन स्टार्टिंग ये यहाँ से हुआ है। इनिशियल स्टेट ये थी, मीन्स इनिशियली द सिस्टम वाज हैविंग 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम और 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर प्रेशर। इस P1 V1 P1 ये है। दिस पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स क्या है, ये और ये 1 1। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है 1 3। बट स्टार्ट तो यहां से हुआ है, प्रेशर जो इंक्रीज हुआ है 1 2 3 हुआ है, तो चेंज इन प्रेशर जो भी ये साइड है वो दैट इज 2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इट विल गिव यू 6 जूल। Okay, because this is a objective type question, you have to answer, you have to select one choice out of 4. It is not a multiple choice answer. और जो फर्स्ट क्वेश्चन आपको बताया था उसको आप मल्टीपल चॉइस बना सकते हैं। When coffee in the thermos flask is shaken vigorously, तो आपने पहला चॉइस दिया हमें कि there will be increase in temperature. सेकेंड हम पूछते हैं whether there will be increase or change in the internal energy. और इंक्रीज इन टेंपरेचर चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। चेंज इन टेम्परेचर हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। तो चेंज इन टेम्परेचर हुआ तो चेंज इन एनर्जी क्या है? इंटरनल एनर्जी चेंज होगी कि नहीं होगी? होगी। वो डीयू की जगह लिखा होगा। ये क्या होता है? दिस इज रिलेटेड टू दिस। ये यहाँ से देखो ना, इसकी वैल्यू निकालो यार। अच्छा ठीक है। आपको क्या बताया गया था? व्हाट इज द कॉज ऑफ चेंज इन द इंटरनल एनर्जी? Depends upon 2 factors. If the gas is ideal gas, if gas is ideal, the cause of change in the internal energy is only temperature. यदि अगर टेम्परेचर चेंज हुआ तो इंटरनल एनर्जी चेंज होगी, यही तो है ये। तो सर कॉफी आइडल कैसा है? कि कॉफी के केस में जब उसको आपने शेक किया टेम्परेचर चेंज हुआ कि नहीं, तो इंटरनल एनर्जी चेंज होगी कि नहीं होगी? अब मुझे ये बताओ इसमें इंटरनल एनर्जी चेंज होगी? सर इसमें इसमें नहीं होगी। नहीं होगी। इन साइक्लिक प्रोसेस, इन रिवर्सिबल प्रोसेस, ओके, देयर इज नो चेंज इन द इंटरनल एनर्जी। सही जवाब दिया। यू हैव टू कम टू द रूट लेवल फॉर आंसरिंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। जब आपको हेल्पलाइन दे दी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, जो डी यू है चेंज इन द इंटरनल एनर्जी, यहाँ एक कारण ये लिखा हुआ चेंज इन टेम्परेचर, ये चीज ये है, टेम्परेचर चेंज होगा तो इंटरनल एनर्जी चेंज होगी। लेकिन अगर साइक्लिक प्रोसेस है इसमें तो होगी चेंज, क्योंकि ये साइक्लिक प्रोसेस नहीं है। The system has gone from this state to this state. ये इनिशियल स्टेट है, इसके कोऑर्डिनेट देखो 1 और 3 है, तो इट हैज गॉन टू दिस स्टेट। इसमें x जो है वो 4 है और y जो है वो 3 है। यस सर।
Okay, system has not been turned back to the initial state. It is transferred from state A to state B. Okay, this is not a cyclic process. इसके ना नीचे And then there is a change in volume. वर्क डन तो होगा, चेंज इन वॉल्यूम वर्क भी हुआ है, आपने निकाला भी है, 9 जूल वर्क हुआ है इस केस में. अब चेंज इन इंटरनल एनर्जी इसमें होगी, लेकिन वो पता कैसे लगेगा? अगेन मान लीजिए ये आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है, यहाँ से आप चेंज इन इंटरनल निकाल सकते हैं. वर्क डन आपको पता है, लेकिन ये पता लग जाए कि how much heat was added to the system or how much heat was removed from the system. Okay, I gave you one question. Thermodynamical system. Okay, 150 calorie of heat was added to the system. 150 calorie of heat was added to a system, and 40 calorie ले लो, same unit ले लो, easy हो जाएगा. 40 calorie of work was done by the system. 150, make use of this relation, first law of thermodynamics. Q is du plus dw. This is dw. सर वर्क डन बाय 150. सर वर्क डन बाय द सिस्टम है कि ऑन द सिस्टम? हाँ, you have to be careful, by the system or on the system. Okay, so 150 calorie of heat was supplied to the system, and 40 joule of work is done by the system. सर 110 Okay, so how much is the change in the internal energy? 110 calorie. Yes, the change in the internal energy will be 110 calories. If I say 150 joules of heat was supplied to the system, so when heat is added to the system, then there is a chance of expansion, there is a chance of change in volume, there is a chance of work done. Okay, and if I say the 40 calorie of work was done on the system, how much is the change in the internal energy? सर 190 calorie. Yes, 190. Calorie. Yes. If I say 40 joule calorie of work was done on the system, जैसे कॉफ़ी के केस में पहले उसके पास एनर्जी थी, हॉट कॉफ़ी थी, फिर शेक किया, वर्क हीट में कन्वर्ट हो गया, उसकी एनर्जी बढ़ गई, टेम्परेचर बढ़ गया, टेम्परेचर बढ़ने से इंटरनल एनर्जी बढ़ गई. ठीक है ना? यहाँ भी सिस्टम काम नहीं कर रहा, वी आर डूइंग वर्क ऑन द सिस्टम, तो ये माइनस हो जाएगा. Then what will be the change in the internal energy? You have to transfer this to this side, 190 calories. That means work done by and work done on. Again you have to select. कि work done by है या work done on है. Work done is negative or positive. फिर change in energy निकालना है, change in the internal energy निकालना है, तो आपको work done का साइन अटैच करना पड़ेगा, माइनस और प्लस, फिर ट्रांसफर करके फिर आपको डी निकलेगा, आंसर डिफरेंट आएगा. Work done on, work done by will give you different answer while calculating the change in the internal energy of the system. Clear? अच्छा. So we were given this problem that there were 4 PV diagrams and you had to select in which case there is minimum work done. So far we have calculated this is in this case 0 work done, in this case 2 joule, in this case 9 joule, in this case 6 joule. The minimum work is done in first case. And if I ask you in which case maximum work will be done? Sir, case number 3. In this case 9 joule. Okay, without calculating, looking at the graph, okay, without calculation, mathematical calculation नहीं करनी, looking at the graph you can judge कि इसके अंदर एरिया ज़्यादा आता है.
ये स्टेट ग्राफ है, साइक्लिक प्रोसेस नहीं है, रिवर्सिबल नहीं है, ये इरिवर्सिबल है। ए से बी में सिस्टम चला गया, बी से वापस ए पर नहीं आया। Yes, sir. ओके, तो सिस्टम हैज been taken from A state to B state and it has not turned to the initial state. Therefore, it is not reversible. And whichever process is not reversible, it is irreversible. ये irreversible है। इसमें चेंज इन द इंटरनल एनर्जी भी होगा, वर्क डन भी होगा, क्योंकि चेंज इन वॉल्यूम हुआ है। कारण देखो ना, चेंज इन वॉल्यूम विल गिव यू वर्क डन, चेंज इन टेम्परेचर विल गिव यू चेंज इन द इंटरनल एनर्जी। इफ आइसोथर्मल प्रोसेस होती मान लीजिए, तो चेंज इन टेम्परेचर तो है ही नहीं। आइसोथर्मल प्रोसेस टेक्स प्लेस एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर, तो dt विल बी जीरो फॉर आइसोथर्मल। ये पार्ट होना ही नहीं, इंटरनल एनर्जी चेंज ही नहीं होनी। तो वट एवर हीट इज एडेड टू द सिस्टम विल बी यूटिलाइज्ड बाय द सिस्टम इन चेंज इन वर्क ओनली। एक ही काम होगा। अदरवाइज जो हीट ऐड करते हैं, दो काम करती है, वो कहते हैं आप एक ही काम होगा, क्योंकि एक काम तो उसने कह दिया नहीं करना, क्योंकि टेम्परेचर नहीं चेंज होना चाहिए, इंटरनल एनर्जी नहीं चेंज होनी चाहिए, क्योंकि चेंज इन टेम्परेचर जो है दैट कॉजेज द चेंज इन द इंटरनल एनर्जी। जब आपने कह दी ये चेंज नहीं होना, नीचे नहीं होना, फिर जो हीट आप देंगे तो एक ही तो काम बचा उसके पास, सारी हीट वर्क में लगेगी। और आपको पता है कि हीट कैन बी कन्वर्टेड टू वर्क। ओके, अनदर क्वेश्चन जो आपको कॉर्नर हीट इंजन बताया था, जरा सोच के जवाब देना। ये वर्क टू हीट, हीट टू वर्क, in both the cases do you think efficiency will be same, conversion will be 100% or not? No, sir. In which case it is 100%, or it is not 100% in any of the process? V upon H is R. सर तो किसी में भी 100 नहीं होगी सर, क्योंकि जब वर्क को हीट में कन्वर्ट करते हैं और W by H कांस्टेंट रखना है। ओके, उस कांस्टेंट का नाम J है। Yes, sir. ज़्यादा वर्क करोगे ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। Yes, sir. रेशो फिक्स होनी चाहिए, ये जूल्स लॉ है, आपको बताया। ये कन्वर्शन, वर्क इनटू हीट, हीट इनटू वर्क। ओके, अब जो डिवाइस वर्क को हीट में कन्वर्ट करती है और जो हीट को वर्क में कन्वर्ट करती है, क्या सेम डिवाइस है? No, sir. वर्क को हीट में, मैकेनिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करना, ठीक है ना? और उधर आपने हीट को वर्क में कन्वर्ट करना है। हीट को वर्क में कन्वर्ट करने वाला कौन है? इंजन। डिवाइस विच कन्वर्ट्स हीट एनर्जी इनटू वर्क, दैट इज इंजन, हीट इंजन। And you have been told efficiency of heat engine is never 100%. No engine can transfer all heat into all work. It's maximum 40%. Right? Okay, so therefore ये जो work heat to work conversion is never 100%. But entire work can be converted into entire heat. ये 100% है। पूरा वर्क हीट में कन्वर्ट हो जाता है, पर यहाँ जो रिवर्स प्रोसेस है वो 100% नहीं है। जो डिवाइस हीट एनर्जी को मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करती है उसको हीट इंजन कहते हैं। कार्नेट हीट इंजन जो कह रहा था कि मेरी मैक्सिमम एफिशिएंसी है, नो इंजन कैन बी मोर एफिशिएंट देन कार्नेट हीट इंजन। Yes, sir. ओके, 40% efficiency. हाँ, फिर हमने डिफरेंट ऑप्शन देखी कि क्यों नहीं एफिशिएंसी 100% होती, Heating gas. क्या रिक्वायरमेंट है कि इंजन पूरी हीट को पूरे वर्क में कन्वर्ट कर दे, उसके लिए क्या कंडीशन है? Ideal gas. Ideal वर्किंग gas. सब्सटेंस आइडियल गैस होती कोई नहीं। Weightless piston. तो सिलेंडर फिटेड विद ए पिस्टन दैट शुड बी वेटलेस एंड फ्रिक्शनलेस होता कोई नहीं। तो दीज आर द काजेज फॉर विच इंजन कैन नॉट बी 100% एफिशिएंट। और इंजन वो है जो हीट को वर्क में कन्वर्ट करे। तो हीट को वर्क में कन्वर्ट करना इंजन है, इंजन की एफिशिएंसी 100% हो नहीं सकती, इसलिए ये 100% कन्वर्शन पॉसिबल नहीं है।
लेकिन ये जो कन्वर्जन वर्क टू हीट ये 100% कन्वर्ट हो जाती है। एंटायर वर्क इज कन्वर्टेड इनटू एंटायर हीट। सर लेकिन वर्क होना स्टार्ट हो जाएगा उसके बाद थोड़ी देर बाद ही हीट होना स्टार्ट होता है। अब जब हम वर्क स्टार्ट करते हैं तो नहीं, जैसे वर्क हुआ हीट आ गई, लेकिन इतनी कम आई कि आप मेजर नहीं कर पाए, उसको डिटेक्ट नहीं कर पाए। जैसे ही वर्क डन होएगा और जब काफी बार हैंड्स को रब किया फिर पता लगा हाथ गर्म हो गए। अब एक बार रब करेंगे तो वर्क हुआ, वो कहाँ गया? वो तो हीट में ही कन्वर्ट हुआ ना। लेकिन वो टेम्परेचर इतना कम उसने चेंज किया है, हीट एनर्जी इतनी कम, क्योंकि वर्क ही कम हुआ है। तो वो तो नेग्लिजिबल हो जाएगा ना। नेग्लिजिबल तो आप मेजर नहीं कर पा रहे, वैल्यू तो है, ठीक है ना। आपका इंस्ट्रूमेंट जो है उसको रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा है, इट डजंट मीन के वो है ही नहीं, ठीक है ना। आपका इंस्ट्रूमेंट अगर सेंसिटिव है, वो इतने कम वर्क की जो हीट बनी है उसको डिटेक्ट कर ले, टेम्परेचर कितना राइज हुआ उसको पता लग जाए, ठीक है। नहीं लगा पा रहा, जैसे थोड़ा ज़्यादा वर्क करोगे फिर पता लगेगा हाँ वो आपने सही है। नहीं तो एंटायर वर्क कैन बी कन्वर्टेड इनटू एंटायर हीट। ये बोथ वे प्रोसेस है, एक 100% है, एक कभी भी 100% नहीं होती। ये वाली प्रोसेस हीट टू वर्क इज नेवर 100%। क्या मतलब वो भी 100% होती है, हम मेजर नहीं कर पाते उसको, किसको? हीट टू वर्क को। जब आपने लिमिटेशन देख ली कि एफिशिएंसी 100% करने के लिए आइडियल गैस चाहिए, आइडियल गैस है ही नहीं, आप हाइड्रोजन गैस यूज़ कर रहे हो जो 100% आइडियल नहीं है। फिर आप अब कह रहे हैं पिस्टन ले आओ वेटलेस, और कोई भी हल्के से हल्का पिस्टन भी लगा दोगे सिलेंडर में तो भी वेटलेस नहीं होता। सर जब कोई सर, गैस लेकिन नहीं कर उसका पा तो रही- उसका ट्रू भी तो नहीं था ना कैरेट हीट इंजन का। उसने तो बस एजम्पशन किया था और थ्योरी दी थी, बस प्रैक्टिकल तो किया नहीं था उसने। थ्योरी दिया, लेकिन हमने उनसे पूछा कि भाई वो प्रैक्टिकल एफिशिएंसी कैनट भी मान के 100%। सही बोल रहा हूँ, हैं? मान के फिर हम सही बोल रहे हूँ। हाँ वो भी तो गलत नहीं, एक चीज है ये देख, जो उसने बोला भाई कि फ्रिक्शन मैंने ऑलवेज काजेज लॉस ऑफ एनर्जी, ठीक है ना। जब हमने वर्क करना है तो जो सिलेंडर के अंदर पिस्टन फिट किया उसने मूव करना है, कभी एक्सपेंशन की तरफ बाहर जाना है, कंप्रेशन की तरफ अंदर जाना है। तो आप 9th क्लास से नहीं पढ़ते कि फ्रिक्शन जो है मोशन का दुश्मन है, और जहाँ मोशन होगी फ्रिक्शन तो बिना बुलाए उसको इन्वाइट करने की जरूरत नहीं होती। सर वैसे भी जो उसने चीजें बोली थी मेरे को चाहिए वो थी नहीं, तो वो प्रैक्टिकली कैसे करता? चलो मान लो वो भी वो कहता है थ्योरेटिकल है, ठीक है ना, और हम नहीं मेजर कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे? भाई जब आपको ये पता है कि फ्रिक्शन जो है, हाँ जी, ये डिसिपेटिव फोर्स है, इट काजेज लॉस ऑफ एनर्जी, ये धजिया उड़ा देगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ हीट में उसकी एनर्जी का, ठीक है ना। तो फ्रिक्शन है मोशन का दुश्मन है। इंजन में तो मोशन होनी है, वी वांट मैकेनिकल एनर्जी, वी वांट मोशन इन इंजन। जितनी गाड़ियां हैं वो मूव करती हैं, हर गाड़ी में इंजन लगा हुआ है, हर इंजन में सिलेंडर है फिटेड विद पिस्टन रॉड है, ओके। हर इंजन को हीट को मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करना है। हीट का सोर्स कुछ भी हो, डीजल हो, पेट्रोल हो, चाहे वो स्टीम हो, सोर्स डिफरेंट हो सकता है, लिक्विफाइड हाइड्रोजन हो, ओके, फ्यूल कुछ भी हो सकता है, लेकिन अल्टीमेटली इंजन का काम हीट एनर्जी को वर्क में कन्वर्ट करना। तो ये हीट टू वर्क कन्वर्ट करने की डिवाइस का नाम इंजन है। और कैनेट ने कह दिया कि नो इंजन कैन कन्वर्ट ऑल हीट इनटू ऑल वर्क। अच्छा, ये तो आप कहते हैं भी थ्योरेटिकल है, मेजर नहीं कर पाए होंगे। तो घर में देख लो आपकी मम्मी मटर लेकर आती है, क्या किलो मटर लाए तो किलोमीटर की मटर की सब्जी बनाते हो? क्या एफिशिएंसी 100% होती है? सबसे पहले छिलके उतारते हो। गन्ने के जूस वाले से पूछ लो यार, पूरे गन्ने का जूस बना दे, 100% एफिशिएंसी दिखा दे, वो कितनी बार ट्राई करता है? पहले एक बार जूस निकाला, फिर उसको फोल्ड किया, 10-15 बार, उसके बाद देखता है एक बूंद भी जूस की नहीं निकल रही। तो गन्ना तो बच जाता है ना, छिलका तो बचता है ना, वो तो नहीं कन्वर्ट हुआ जूस में। तो डेली लाइफ में आपके पास एग्जाम्पल है। आपका पूरे यूनिवर्स में आपके डाइजेस्टिव सिस्टम जैसा एफिशिएंट और कोई हो नहीं सकता। जितने इंजन बने इसको देख के बने। आप क्या खाते हो और उसको कितना यूटिलाइज करते हो? क्या 100% यूटिलाइज कर लेते हो? सारा पानी पिया, कुछ भी नहीं निकाला, सारा खाना खाया, सारा हजम कर लिया, सारा एनर्जी में कन्वर्ट कर लिया, सारा बॉडी बिल्डिंग में कर लिया, सारा बोन्स फॉर्मेशन में कर लिया। संत महात्मा भी नहीं कर पाए। जो डॉक्टर तुम्हें बताते हैं उनसे पूछ लो, क्या पीजीआई में चले जाओ, बड़े से बड़े डॉक्टर जो HOD हैं उनसे पूछो,
ओके, क्या आप पूरे फूड को एनर्जी में कन्वर्ट कर लेते हो? तुम तो डॉक्टर हो भाई, HOD हो भाई, PGI के डॉक्टर हो भाई, बढ़िया से बढ़िया डॉक्टर हो भाई, फूड टेक्नोलॉजी को आप जानते हो। हाँ जी, घर में भी नहीं एफिशिएंसी 100% मिलती है, आपको बताया तो है। मूंगफली खाते हो, सारी खा जाते हो, सबसे पहले छिलके उतारते हो, ठीक है ना। 1 किलो मूंगफली में पाइया दाने निकलते, बाकी तो बेकार हो गया, एफिशिएंसी तो वही 25% रहेगी। कितने एग्जाम्पल आपकी डेली लाइफ में है? गॉट माय पॉइंट? तो नो इंजन इज 100% एफिशिएंट। फिर आपको बताया कि कन्वर्शन जो है वर्क इनटू हीट भी है, हीट इनटू वर्क भी है, और वर्क इनटू हीट ये कन्वर्शन 100% है। ओके, और ये हीट इनटू वर्क वो 100% नहीं है। बढ़िया से बढ़िया इंजन कार्नेट ने बनाने की कोशिश करी, उसकी रिक्वायरमेंट जी थी कि ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो, हम नहीं कर पाए, आइडल गैस नहीं दे पाए, और जो पिस्टन था वेटलेस नहीं मिला, और फ्रिक्शन लेस पिस्टन भी नहीं मिला, क्योंकि हमें पता है कि भाई जो इंजन है उसमें सिलेंडर होता है, पिस्टन होता है, पिस्टन रॉड होती है, हीट एनर्जी सप्लाई भी की जाती है, वहाँ से रिमूव भी की जाती है। आपने कार्नेट हीट इंजन पढ़ा है? ओके, तो कई बार हीट ऐड करनी पड़ती है। आमदे का हीट आपने दे दी, लेकिन इतनी हीट रिजेक्ट हो गई, वो वर्क में कन्वर्ट नहीं हो पाई। अब क्यों नहीं हो पाई? कारण क्या है? ये एफिशिएंसी नहीं है 100%। एफिशिएंसी ना होने का क्या कारण है? कि वर्किंग सबसे हमारा आइडियल नहीं है। ठीक है, जहां मोशन करवा रहे हैं वहां फ्रिक्शन बैठा है, अब उसको हाथ पैर जोड़ते हैं, फ्रिक्शन तुम्हारी एनर्जी लॉस मत कर यार, एफिशिएंसी 100% होने दे। कहता ना, मैं तो डिसिपेटिव फोर्स हूँ, आई विल कॉज लॉस ऑफ एनर्जी, बना लो जितना मर्जी। अब तो हम आइडियली लेते हैं कि ये फ्रिक्शन लेस सरफेस, स्मूथ सरफेस, क्या देते हैं? फ्रिक्शन 0। भाई स्मूथ है ही नहीं सरफेस। ओके, देखने में स्मूथ लगती होगी, लेकिन अदरवाइज प्रैक्टिकली वो स्मूथ नहीं है। ओके